A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the very important chapter of your syllabus, that is a financial statement of sole proprietorship with adjustment and without adjustment. And you can see that in the last few videos how sole proprietor prepare its final account, that is a trading account, profit and loss account, and the balance sheet with the help of the trial balance and the available given adjustment like in closing stock, outstanding expense, prepaid expense, accrued income, advance income, manager's commission, interest on capital, interest on drawing, abnormal loss, goods distributed as free sample, goods withdrawn as personal use, as well as lots of the various adjustment regarding the goods sold on approval basis. As well as we discussed the adjustment related to the goods and service tax, in which segment we discussed. In this segment we discussed how output CGST, output SGST, output IGST, as well as input CGST, input SGST, input IGST shown in the balance sheet of the sole proprietorship, as well as we discussed the various concept related to the GST on adjustment item. So you can see that how sole proprietor prepare its financial statement as a trading account, PL account and balance sheet with the help of the given adjustment. और उसमें हम लोगों ने numerical question भी discuss किया, we discuss the theoretical as well as the practical aspect of such chapter. So now we will move to the next chapter, the second last chapter of your syllabus, that is an incomplete record. पहले भी हम लोगों ने इस चैप्टर पे अच्छे से डिस्कस किया है, इस चैप्टर को और पता किया है, इस बारे में डिस्कस किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड इन विच सिचुएशन कंपनी फॉलो द कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. सो नाउ without creating delay, let's we revise the second last chapter of your syllabus, that is an incomplete record. The full name of this chapter is an accounts from incomplete record. So basically what is incomplete record? नाम से ही clear है, incomplete record, the record which are not complete. और जो record complete होते हैं उनको क्या बोलते हैं? Complete record. So the record which are not completed, it means किसी न किसी एंगल से उस record में कोई ना कोई कमी है, deficiency है. Such that's why we say such account will be known as incomplete record. So इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं. पहले इस चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें हम लोग रिवाइज करेंगे उसको, और फिर उसके बाद उसके प्रैक्टिकल सेगमेंट पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. आखिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की मीनिंग क्या है? कैसे हम कहेंगे कि सच रिकॉर्ड विल बी नोन एज एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड? सो मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मीन्स accounting record which are accounting records which are not prepared in accordance to accounting records which are not prepared in accordance with principle of accounting as well as double entry system. So how we will say that such record will be known as incomplete record? कोई भी रिकॉर्ड जो कि प्रिपेयर नहीं किया जाता, नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ, किसके अकॉर्डिंग? प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स है ना, प्रिंसिपल पढ़े, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल, सेपरेट एंटिटी लीगल कॉन्सेप्ट,
एक्रूअल कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो सच कॉन्सेप्ट अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं रिकॉर्ड बनाने में, तो उस रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। एज वेल एज जो रिकॉर्ड्स डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते। डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, यू नो वेरी वेल। डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट दी what is double entry system. Double entry system is a system in which we discussed about the two aspect of the accounting. What is the two aspect of accounting? Two aspect of accounting says that कि हर ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है और हर ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को इफेक्ट करता है. व्हाट इज एन डबल एंट्री सिस्टम? अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम, एवरी ट्रांजेक्शन हैव इफेक्ट at least two account. Out of them, one is debited and another is credited. कोई भी ट्रांजेक्शन है इस पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो मॉनेटरी कॉन्सेप्ट हो, वो चाहे नॉन मॉनेटरी कॉन्सेप्ट हो, वो कम से कम दो एस्पेक्ट को तो इफेक्ट करता ही करता है. सो इन अकॉर्डिंग्स टू द डबल एंट्री सिस्टम, फिर से मैं बता देता हूं कि व्हाट इज एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड? अकाउंटिंग रिकॉर्ड विच आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. जो ये रिकॉर्ड्स प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे प्रिपेयर नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं. इज दैट क्लियर? इट इज ऑल्सो नोन एज records based on single entry system. ये भी याद रखिएगा आप लोग, जो रिकॉर्ड डबल एंट्री सिस्टम पे बेस नहीं करते, जो रिकॉर्ड हम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं करते, उससे हम क्या करते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं. सो इन शॉर्ट, व्हाट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड? The accounting record which are not prepared in accordance to the principle of accounting as well as the double entry system. It is also known as the record based on single entry system. यानी ये रिकॉर्ड किस पे बेस्ड होता है? डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड नहीं होता है, ये सिंगल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एन फीचर्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे हम कह सकते हैं. क्योंकि ये रिकॉर्ड किस पे बेस्ड होते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम पे. सो द फीचर ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम आर एज फॉलोज. द फर्स्ट फीचर ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इज, फीचर कह लो, डिसएडवांटेज कह लो, दैट इज अनसिस्टमैटिक ऑफ रिकॉर्ड. अनसिस्टमैटिक ऑफ रिकॉर्ड्स. बेसिकली जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है ना, वो सारे ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली और एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करता है, बट सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड को अनसिस्टमैटिकली ढंग से रिकॉर्ड करता है. जैसे अगर हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर दी वेस्ट बुक, देयर आफ्टर वी प्रिपेयर दी जनरल बुक. और अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो जनरल प्रिपेयर नहीं करता, दे प्रिपेयर द सब्सिडरी बुक एंड देयर आफ्टर प्रिपेयर दी लेजर, ट्रायल बैलेंस, financial statement, and thereafter communicate the such financial statement to the related user. But in the single entry system कोई systematic चीजें नहीं है कि हम एक प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या बनाना है, पहले क्या बनाना है, बाद में क्या बनाना है, इसके बारे में कोई स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन नहीं है. दूसरा है, सेकेंड विल बी अ मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है सिंगल एंट्री सिस्टम का. सिंगल एंट्री सिस्टम में देखो, बेसिकली सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह लो या सबसे बड़ी लिमिटेशन कह लो या उसका सबसे बड़ा फीचर कह लो, वो ये है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ वी फोकस्ड ऑन द पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक. इस पे मैंने बहुत ही पहले जब मेन वीडियो बनाया था या मेन क्लासेस लिया था, तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड विच आर सुटेबल फॉर द स्मॉल ट्रेडर्स, जो छोटी छोटी दुकानें आप देखते हैं अपने घर के आसपास, जनरल स्टोर्स, सो वो बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते.
दे कुड नॉट प्रिपेयर दी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। वो कहेंगे जितने का तो मैंने बेचा नहीं उतना तो मुझे अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो अप करना पड़ रहा है। बट कहते हैं ना एक छोटा मोटा अगर उन्हें अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, सो फॉर दिस पर्पज दे प्रिपेयर दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड विच आर बेस्ड ऑन द सिंगल एंट्री सिस्टम। सो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटा मोटा जो बिजनेस चलाते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो ना करके सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। कोई सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं होता है, कॉपी कह लो, किताब कह लो, व्हाटएवर, और वो सिर्फ 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, 2 चीजें प्रिपेयर करते हैं अपनी सारी चीजों को प्रॉपर रिकॉर्ड करने के लिए। फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक। यानी सबसे पहले वो प्रिपेयर करते हैं कैश बुक। कैश बुक से क्या पता चलता है कितना आया कितना गया। भाई सिंपल सा, आप भी कोई बिजनेस करोगे तो आप पूरे दिन भर में बैठे हो दुकान पे, तो यू विल काउंट अबाउट इट कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया और शुरू में कितना था। तो कैश बुक भी तो ये बताता है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और कितना बचा हुआ। बिगनिंग में कितना था, कितना रिसीव्ड हुआ, कितना पेमेंट हुआ, कितना बैलेंस आया। तो कैश बुक तो बनाना संभव है, कैश बुक बनाते ही। पर्सनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? बिकॉज यू नो वेरी वेल, जो सिंगल एंट्री सिस्टम पे बेस पे जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं ना, वो कैश सेल भी करते हैं, क्रेडिट सेल भी करते हैं, कैश परचेज भी करते हैं, क्रेडिट परचेज भी करते हैं, क्योंकि उनका सर्कुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ मनी जो होता है मार्केट में अवेलेबल रहता है हमेशा। कभी वो पैसा देते हैं, कभी लेते हैं, कभी क्रेडिट परचेज करते हैं, कभी कैश परचेज करते हैं, कभी क्रेडिट सेल करते हैं, कभी कैश सेल करते हैं। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, सो मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो पर्सनल अकाउंट की हम लोग बात कर रहे थे, तो पर्सनल अकाउंट तो बनाते हैं ही। क्यों बनाते हैं? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वी फाइंड आउट अबाउट दी कि हमें किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है। देखो सिंपल सी मैं बात कर रहा हूं, पर्सनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ द पर्सनल अकाउंट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड जो बिजनेसमैन है, दे फाइंड अबाउट देयर एक्यूरेसी, दे फाइंड अबाउट देयर रिलायबिलिटी, कि हमने किसी को क्रेडिट सेल किया तो उससे हमें कितना लेना है ये पता चलेगा। किसी से क्रेडिट परचेस किया, सो वी फाइंड आउट कि किससे कितना, किसको कितना देना है। सो विद द हेल्प ऑफ द पर्सनल अकाउंट वी सर्टेन अबाउट थिंग्स कि हमारे ऊपर लायबिलिटी कितनी है और हमारी एसेट्स कितनी है। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर। द थर्ड फीचर ऑफ नो यूनिफॉर्मिटी, ये भी एक फीचर है, क्योंकि इसमें किसी भी चीज को मेंटेन करने का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं है। सो दैट्स व्हाई नो यूनिफॉर्मिटी एज वेल एज डिपेंडेंस ऑफ ओरिजिनल वाउचर्स। ये जितने भी एंट्रीज इसमें करते हैं वो ओरिजिनल वाउचर्स पे ही डिपेंड होते हैं। आप इसमें किसी भी तरह का डुप्लीकेट वाउचर इशू नहीं कर सकते, और लेस ऑफ एक्यूरेसी कह सकते हो, इसमें एक्यूरेसी थोड़ी कमी होती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द single entry system. Now we are moving to the numerical part of this chapter. That is if we are talking about the incomplete record में हमें पढ़ना क्या है बेसिकली। incomplete record में हमें ये पढ़ना ये है कि how we will calculate the profit under single entry system. The very important numerical topic of this chapter, that is in profit ascertainment under single entry system. So how we will calculate the profit under the single entry system? It is a very important and very specific question related to this chapter, कि इसमें हम profit कैसे calculate करते हैं। तो basically there are 2 methods by which we calculate the profit. So there are basically 2 methods. First method will be a net worth method. Okay, the second method will be known as which is also known as an capital comparison method. Capital comparison method. So how many methods by which we calculate the profit under the single entry system? There are basically 2 methods by which we easily calculate the profit under the single entry system. So now we are moving to the numerical part of this question, this chapter. So if we are talking about the revise of such question which are based on the which are incomplete record, the question is
क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिएगा. द क्वेश्चन इज मनवीर स्टार्टेड हिज बिजनेस on 1st January 2019 with a capital of rupees 4,50,000 on 31st December 2019 and his position was as under: cash 99,000, bills receivable 75,000, plant 48,000, land and building 1,80,000, furniture 50,000, and the next information is he owed 45,000 from his friend Sushil on that date. उन्होंने अपने फ्रेंड से क्या लिया, लोन लिया 45,000 रुपए का. He withdraw 8,000 per month for his household purpose. Ascertain his profit or loss for the year ended 31st December 2019. ओके, सो हमें इसका क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट में अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इस पे डिस्कस करते हैं हम लोग. ओके, सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, first of all we prepared the opening statement of affair. First of all we prepared with the help of this question, that is a statement of affair. Affairs as on 31st December 2019, and the format is liabilities amount, assets amount. Okay, so for the solution of such question, first of all prepare the statement of affair, and the information is given. Opening capital will be of 4,50,000 and the closing position are as follows, that is in cash is 99,000, which are write down in the asset side. So cash will be a 99,000. Bills receivable 75,000. Receivables 75,000. Plant 48,000. Land and building 1,08,000. $1,80,000, and the last information is furniture is rupees 50,000. Okay, so हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे the asset side of the balance sheet. So this will be a 99, 75, 48, 180, 50. So the total of the asset side is 4,52,000. Okay, and the information is also given. He owed 45,000 from his friend Sushil. उसने अपने सुशील जो अपना फ्रेंड है उससे उसने लोन भी लिया है. So loan is a liability. So loan from friend. The name of the friend is Sushil. The amount 45,000. So the balance amount will be known as in capital. So balancing figure for the balance 4,07,000. So according to the statement of affair, हमने statement of affair क्यों बनाया? With the help of the statement of affair in this question, हमें ये पता चल गया कि हमारी कैपिटल एट द एंड क्या थी. कैपिटल एट द बिगनिंग तो दी है 4,50,000, बट हमें कैपिटल एट द एंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी. सो 4,50,000 टोटल आ रहा था बैलेंस शीट का, उसमें से 45,000 डिडक्ट किया. सो वी फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल इज 4,07,000. ओके, एंड नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है? द प्रॉफिट, असर्टेनमेंट हिज प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019. So what is the formula of the profit? As you know very well, हमें पता है फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ओके, और माइनस लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग. यही फॉर्मूला होता है बेसिकली, हम लोग फॉलो करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल. बट हमें क्लोजिंग कैपिटल पता है, ओपनिंग कैपिटल पता है, बट हमें ये नहीं पता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है. सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे क्लोजिंग कैपिटल
माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। सो हम ये फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला की हेल्प लेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर। ओके, सो द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4,07,000 and opening capital which are given in the question, that is 4,50,000. Closing capital is 4,07,000. Opening capital will be a 4,50,000 and the drawing कितना है 8,000 per month, so plus 8,000 into 12, 96,000. So 4,07,000 minus 4,50,000 plus 96,000. So your answer will be a profit made during the year is 53,000. So you can see that in this process, first of all we prepared the statement of affair. Okay, so the profit for this year is 53,000. Okay, so the closing capital equals to opening capital plus profit minus loss plus additional minus drawing. So the profit for during the year, the formula of the profit is closing capital minus opening capital minus additional capital plus drawing. So the closing capital is 4,07,000, opening capital is 4,50,000 and the drawing is given. Additional capital is not given in this question. So drawing will be 8,000 per month. So 12 से multiply करोगे तो 96 आएगा. So 4,07,000 minus 4,50,000 plus 96 equals to 53,000 and this will be a profit made during the year. I hope it is clear for you. Let's we move to the another question which are related to this topic, that is an incomplete record. Incomplete record में एक क्वेश्चन और भी आपको देखने को मिलता है बेसिकली, जो लगभग शॉर्ट आंसर टाइप पे डिपेंड करता है। जैसा कि क्वेश्चन है, इफ द कैपिटल एट द एंड इज ₹40,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस इज 30,000, ड्रॉइंग इज ₹20,000, लॉस इज ₹60,000, कैपिटल इन द बिगनिंग विल बी। सो आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो आप देखो कह रहा है कैपिटल एट एंड, कैपिटल एट एंड इज ₹40,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस यानी कि एडिशनल कैपिटल विल बी अ ₹30,000, ड्रॉइंग 20,000 and losses for the year 8,000 and capital at beginning कितना होगा? ओके, सो यू नो वेरी वेल, अभी आपने देखा फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू दिस। सो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल minus additional capital plus drawing minus loss. So closing capital will be a 40,000. ये फॉर्मूला कहां से आया ये भी देख लो, क्योंकि आपको पता है क्लोजिंग कैपिटल के लिए आप क्या करते हो, ओपनिंग कैपिटल में प्लस करते हो प्रॉफिट माइनस करते हो लॉस, ठीक, माइनस करते हो ड्रॉइंग और प्लस करते हो एडिशनल कैपिटल। सो ये आ जाता है आपका क्लोजिंग कैपिटल। इतना कुछ करने के बाद वी फाइंड आउट दी क्लोजिंग कैपिटल। ओके, सो यू कैन सी दैट ये सिनेरियो। सो अगर आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल, तो ये सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी, यानी एडिशनल माइनस हो जाएगा, ड्रॉइंग प्लस हो जाएगा, और लॉस माइनस होता है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, फॉर्मूला को बस रिवर्स कर देना। सो क्लोजिंग कैपिटल विल बी 40,000, एडिशनल कैपिटल इज 30,000, ड्रॉइंग विल बी 20,000
and loss will be a 8,000. So opening capital will be a 38,000. So the answer of this question, the opening capital is rupees 38,000, and the correct is, am I correct? Loss is rupees 8,000, 40,000, 30,000, 20,000. Loss is rupees 60,000. Sorry for the mistake. Loss is rupees 60,000. So loss is 60, then 40, 10, 30, 60, 90. So the opening capital of this question is 90,000 rupees. Okay. Now we are moving to the one more question which are related to the incomplete record, and the question is Roop Prakash keeps his books on incomplete record. Following is the information, and the information is opening statement of affair is given, closing statement of affair is given, and according to the opening statement of affair the capital is 11,64,000, and according to the closing statement of affair the closing capital will be at 24,50,000. Okay, so you have to calculate. क्वेश्चन में क्या किया गया है, कैपिटल as per opening statement of affair is rupees 11,64,200, and capital as per closing statement of affair will be a 24,50,100. So these are the information. Opening statement of affair के अकॉर्डिंग कैपिटल है 11,64,200 and capital as per closing statement of affair है 24,50,100 है. So you have to find out the current year profit or loss if, and the information are, the drawing is 24,000 if drawing, if 24,000, additional capital 5,60,000, 5,60,000, and different types of the adjustment. तो एडजस्टमेंट तो आपके कोर्स में है ही नहीं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है. सो ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में सिंपली आपको ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको दो स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना के दे देगा या इस तरह की वैल्यू दे देगा कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर से कैपिटल है 11,64,200, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर से वैल्यू है 24,50,100, ड्रॉइंग इतना है, एडिशनल कैपिटल इतना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है. सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग कैपिटल. ओके, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस drawing minus additional capital. So closing capital will be a 24,50,100 and opening capital will be a 7,64,200 plus drawing 24,000 minus additional 5,60,000. So profit for the year, today's year, is 19,14,100. सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में. सो आज के इस कंप्लीट वीडियो में यू कैन सी दैट वी स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर दैट इज एन अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. एंड व्हाट इज एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड? द रिकॉर्ड्स which do not prepared in accordance to the double entry system or in accordance to the principle of accounting. It means the incomplete record means the records which are prepared on the single entry system, which are totally based on the single entry system. And we discussed the concept and meaning of single entry system, which will be known as an incomplete record, as well as we discussed the feature of single entry system. And
thereafter we discussed the practical problem, how we will calculate the profit or closing capital or opening capital with the help of the net worth method or statement of fair method, in which we discussed how we calculate a profit under single entry system. Okay, so I hope today we cleared all the topics very easily. Apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.